السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیاح لا مکان جربتہا شہنشاہ مدینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کہ جن کا عرس مبارک چل رہا ہے۔ آپ 10 شوال المکرم میں آپ کی پیدائش ہے۔ اصل نام آپ کا محمد ہے اور تاریخی نام المختار۔ آپ کے جو دادا جان تھے وہ آپ کو امام احمد رضا کے نام سے آپ کو پکارتے تھے، اس لیے آپ کا زیادہ تر جو نام مشہور ہوا وہ امام احمد رضا کے نام سے آپ زیادہ مشہور ہوئے۔ اللہ تبارک تعالی کچھ لوگوں کو ایسی ذہانت عطا فرماتا ہے کہ انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ صرف 4 سال کی عمر شریف میں آپ نے ناظرہ قرآن شریف مکمل کر دیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے ربیع الاول شریف کے موقع پر علماء کے مجمع میں بہترین تقریر فرمائی، صرف 6 سال کی عمر میں۔ سبحان اللہ۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے شرح ہدایت النحو لکھی۔ 8 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 8 سال کی عمر میں آپ نے کتاب لکھ ڈالی۔ اور 13 سال کی عمر میں آپ نے عربی میں ایک کتاب لکھی، صرف 13 سال کی عمر میں۔ پہلا فتویٰ آپ نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں آپ نے رضاعت کے مسئلے پر پہلا مسئلہ آپ نے فتویٰ دیا، پہلا فتویٰ آپ نے دیا، اور پھر اس وقت سے ہی آپ جو ہے فتویٰ کا کام کرنے لگے اور آپ مفتی ہوئے۔ تو 13 سال کی عمر میں آپ فاضل ہو چکے تھے، فضیلت آپ نے پا لی، یعنی 13 سال کی عمر میں آپ عالم، فاضل، مفتی سب بن گئے۔ یہ تو آپ کے علم کا مقام ہے کہ آپ کا جیسا علم ہے اعلیٰ حضرت کے علم کو کوئی نہیں سمجھ سکا، اعلیٰ حضرت کے علم کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ جن کے علم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہو، تو جب اعلیٰ حضرت کے علم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو پھر حضور کے علم کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ بے شمار زبانوں پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، بے شمار زبانوں پر مہارت تامہ حاصل ہونا۔ ایک تو زبان کا سیکھنا الگ ہے اور اس پر مہارت حاصل کرنا مکمل، یہ دونوں الگ باتیں ہیں۔ تو آپ کو مہارت تھی، کئی زبانیں آپ کو جو ہے آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان۔ اچھا، مجدد کون ہوتا ہے؟ تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مجدد ہوتا کون ہے۔
مجدد کا معنی ہے تجدید کرنے والا، یعنی کہ اسلام میں جو احکام مٹ رہے ہوتے ہیں اور سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا شخص مبعوث فرماتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جو زمانے میں پھیلی بدعتوں کو ختم کر دیتا ہے اور سنتوں کو پھر سے قوم میں زندہ یعنی رائج کر دیتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین میں پھیلی ہوئی نئی بدعتوں کو مٹا دے، سنتوں کو بحال کر دیتا ہے، اور مجدد وہ کہلاتا ہے۔ مجدد ہونے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک تو علم اور دوسرا ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت نہ ہو وہ علم کی گہرائی کو پہنچ نہیں پاتا۔ اس لیے علم کا وصول اور عنایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ علماء کی کئی کیٹیگری ہوتی ہیں، علماء کے کئی درجے ہوتے ہیں، عالم، فاضل، مفتی، مجتہد فی المسائل، مجتہد فی المذہب، اور بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں تو اور بھی زیادہ درجے ہیں۔ سب سے زیادہ اسی طرح سے ولیوں میں بھی درجے ہوتے ہیں، کیٹیگری ہوتی ہیں، جس طرح سے علماء میں اسی طرح ولیوں میں بھی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابداد، نجبہ، اوتاد، اقویاء، صلحاء، صوفیہ۔ علماء اور اولیاء میں ایک درجہ آتا ہے مجدد کا، علماء میں اور اولیاء میں یہ جو ایک درجہ ہے مجدد کا، یہ دونوں میں آتا ہے، اور اس کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے مجدد کا کہ اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑے ولی، یعنی اپنے وقت کے سب ولیوں کے تمام مسلمانوں کا امام اور سردار ہوتا ہے وہ مجدد۔ جس وقت جو مجدد ہوتا ہے وہ اماموں کا بھی امام، علماء کا بھی امام اور ولیوں کا بھی امام ہوتا ہے اس وقت میں، مجدد جس کو بولتے ہیں۔ مجدد اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں کہ مجدد ایک ایسا مقام ہے کہ اس زمانے کا غوث بھی اس مجدد کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا جو سب سے بڑا درجہ جو ولی کا ہوتا ہے اس وقت کا غوث بھی مجدد کے ماتحت ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب کہ عالم کسی مسئلے کو سمجھنے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ مجدد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مجدد اس مسئلے کو جو ہے حل فرماتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی ولی کسی سلوک کے مسئلے میں سمجھ نہیں جاتا، الجھ جاتا ہے اور سلوک کے مسئلے کو سمجھ نہیں پاتا تو سلوک کی منزل کو پانے کے لیے اس وقت مجدد کی طرف رہنمائی کے لیے جاتا ہے اور ان کی بھی وہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور سنت کے زندہ کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت میں جب سنت ختم ہو رہی ہو اس وقت میں جب کوئی سنت کو زندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور ایک شہید کا ثواب کتنا ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مجدد ہے، ان کو جو ہے مجدد کہا جاتا ہے۔ کہ مجھے اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ جو یہاں اتنا وقت نہیں کہ جو آپ کو جو ہے اس بارے میں بتایا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، یہ اعلیٰ حضرت ہی ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت کچھ لکھا اور لوگوں نے بہت کچھ آپ کے بارے میں کہا بھی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہیں کیا۔ اصل میں اعلیٰ حضرت ہر کسی کے سمجھ میں آ بھی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ مقام ہے کہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے کہ ہمارے شریعت کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم از کم حضرت ہونا تو ضروری ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت ہر کسی کو سمجھ میں تو آتے نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اب پوچھا، لوگوں نے غیروں نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے۔ جب غیروں نے پوچھا اعلیٰ حضرت کو اتنا کیوں مانتے ہو، کیا کیا ہے، تو بزرگوں نے کہا کہ کان کھول کر سن لو کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے کہ جس وقت میں جب جو ہے اولیاء اللہ پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھ رہی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جو ہے
जो है नापा जा रहा था, हुजूर की शान अक़दस में कमी की जा रही थी, हुजूर की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, औलिया अल्लाह पर उंगलियां उठाई जा रही थी, उनको कहा जा रहा था कि ये कुछ नहीं करने वाले, कहा जा रहा था कि मरकर के मिट्टी में मिल गए, कहा जा रहा था ये कोई मदद नहीं करने वाले, कहा जा रहा था कि शफाअत रसूल नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखने वाले कि नबी मरकर के माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। उस वक्त में जब बुजुर्गान दीन ने कहा कि शिरक था नाज करना, शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तों का समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिरक, तो शिरक का कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहल दी अहमद रजा कहने लगे, मिल्लते खत्म रसूल का फासला कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो फूल है खारों को गुले तर कर दिया, और कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबान जिंदाबाद जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। अब्र रहमत उनकी तुरबत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। हम इस दुनिया में बहुत कलमकार आए, इस दुनिया में बहुत ज्यादा कलमकार आए। किसी ने कलम उठाया तो लैला का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो मजनू का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो शीरी का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो फरहत का जिक्र किया। लेकिन आला हजरत ने जब कलम उठाया तो किसी अपने बाप दादा का जिक्र नहीं किया, अपने खानदान वालों का जिक्र नहीं किया, दुनियादारी का नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब परवरदिगार के बारे में लिखते हैं, जिक्र करते हैं। आप देखो तो सही क्या खूब फरमाते हैं। आला हजरत का जब कलम चलता है, आला हजरत जब कलम फरमाते तो क्या लिखते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आला हजरत की शान का आलम क्या है, कलम उठा आला हजरत का तो नबी की पेशानी के बारे में लिखते हैं, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, सुभान अल्लाह, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के गोशे मुबारक के बारे में लिखते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, सुभान अल्लाह बोलो, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब इल्म गैब कहते थे ना कि रसूलुल्लाह दूर नजदीक सुनने वाले नहीं, वो पुकारे सुनते नहीं, आला हजरत का कलम उठा तो क्या कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। और आला हजरत का जब कलम चलता है हुजूर की लबे मुबारक के बारे में तो क्या लिखते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब कलम उठा आला हजरत का तो आमदे सरकार के बारे में लिखते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरो समाअत पे लाखों सलाम। जब कलम उठा आला हजरत का तो शहर रसूल के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। जब कलम उठा आला हजरत का, जब नबी की हयात के बारे में लिखते हैं, जब किसी ने कहा कि हुजूर तो जिंदा नहीं है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो मर करके मिट्टी में मिल गए, आला हजरत का कलम उठा और हयात नबी के बारे में लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले है, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब कलम उठा आला हजरत का तो रसूल पाक की अता के बारे में लिखते हैं, लोगों ने कहा कि हुजूर तो कुछ अता कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आला हजरत ने जब कलम उठाया तो क्या कहते हैं, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए हैं। जब कलम उठा आला हजरत का, किसी ने कहा कि वो शफाअत भी नहीं फरमाने वाले, लेकिन कलम उठता है आला हजरत का और शफाअत रसूल के बारे में लिखते हैं, सबने शफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने शफे महशर में, कभी आदम के पास, कभी ईसा के पास, कभी रूहुल्लाह के पास में, कभी मूसा के पास में जाते हैं तो आला हजरत तुम तो कहते हो कि शफाअत नहीं फरमाने वाले, अरे हम कहते हैं सबने शफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और जब कलम उठा आला हजरत का तो गुंबते खजरा के बारे में लिखते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा,
हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। इसलिए हर सुन्नी मुसलमान अपने पेशवा मोहसिन और इमाम अपने इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत से पेश करते हैं और कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, वो रजा आला हजरत बरेली के शाह मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आला हजरत को समझना हर किसी के बस की तो बात है नहीं मेरे अजीज, आला हजरत को हर कोई नहीं समझ सकता। आला हजरत है, आला हजरत हुजूर की अता है, गौसे आजम की करामत है और अल्लाह का मौजिजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये जो इमाम अहमद रजा हमें अता फरमा दिए, ये हुजूर की अता है, हुजूर की मौजिजा है, हुजूर का मौजिजा है इमाम अहमद रजा। आज आला हजरत ही की वजह से सुन्नियत जिंदा है, आला हजरत ही की वजह से तो आज सुन्नियत जिंदा है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा काम किया कि जो काम आज तक कोई नहीं कर सका वो इमाम अहमद रजा ने किया है, वो इमाम अहमद रजा ने किया है। जो फतावा रज़विया जो आपने लिखी है, हकीकत में फतावा रज़विया ऐसी फतावा रज़विया किताब आज तक किसी ने नहीं लिखी है। आज हम तो अपने गैर भी अगर किसी मसले में उलझ जाते हैं तो वो भी फतावा रज़विया ही इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते हैं मसले हल करते हैं। अपने गैर भी अगर किसी मसले में उलझ जाते हैं तो भी आला हज़रत के फतावा रज़विया को देखते हैं। कंजुल ईमान जो आपने हमें अता किया, एक सही और सच्चा और बेहतरीन तर्जुमा हमें अता किया, वो इमाम अहमद रजा का कंजुल ईमान है, जो आज हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और अपने ईमान को ताजा करते हैं और मुनव्वर करते हैं। यही वो इमाम अहमद रजा हैं जिन्होंने करोड़ों मुसलमानों के ईमान और अकीदों की हिफाजत फरमाई। आला हजरत को समझो तो सही, आला हजरत है क्या आखिर? लोग कहते हैं कि वो क्या है? अरे यही इमाम अहमद रजा हैं कि जिनको मुजद्दिद आजम का लक़ब मिला, यही वो इमाम अहमद रजा खान है जिन्होंने इक़रार तौहीद का असल माना और अदब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताया है। ये वही इमाम अहमद रजा हैं जब दीन इस्लाम पर फितनों का जोर हुआ, यानी जब जो लोग जो है फितने गाड़ रहे थे, फितने उठा रहे थे, तने तन्हा इमाम अहमद रजा ने सबका मुकाबला किया और अपने कलम से सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, अपने कलम से सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है, मोहब्बत रसूल क्या है और अदब रसूल क्या है, औलिया अल्लाह का मकाम क्या है। ये किसने बताया? ये आला हजरत ने ही तो बताया। ये वही इमाम अहमद रजा खान है जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में सुन्नियत जिंदा है, मुसलमान मौजूद है। ये वही इमाम अहमद रजा है जिनको हजारों सफात पर फैली हुई फतावा रज़विया आज एक अलग मकाम रखती है। ये वही इमाम अहमद रजा हैं जिन्होंने कुरान पाक का सबसे बेहतरीन और सच्चा तर्जुमा किया, जो कंजुल ईमान फी तर्जुमतुल कुरान के नाम से मशहूर है। सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रिज़वान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बस आखिर में इतना कहूंगा कि आपके दौर से अब तक के तमाम औलिया इकराम अलैहिमुर रिज़वान ने हक फरमाया कि आज के दौर में सही ईमान और अकीदे की अगर कोई पहचान है तो इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि की पहचान है ना। इसीलिए आप पहचाने जाते हैं, सुन्नियत वाकई में उनके नाम से पहचानी जाती है। दोस्तों, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि का रास्ता कोई अलग रास्ता नहीं है, कोई अलग मसलक नहीं है। वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। लेकिन आला हजरत का रास्ता कोई अलग रास्ता नहीं है। आला हजरत का रास्ता वही रास्ता है जो मुहद्दिस बरेलवी का रास्ता है। हकीकत में रहमत आलम आला हजरत का रास्ता हकीकत में वो रास्ता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो सहाबा का रास्ता है, जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि का रास्ता है, वही आला हजरत का रास्ता है। आला हजरत का रास्ता वही रास्ता जो हजरत इमाम हसन का रास्ता है। आला हजरत का रास्ता वही रास्ता है जो हजरत इमाम हुसैन का रास्ता है। आला हजरत का रास्ता वही है जो सैयदना गौसे आजम का रास्ता है। आला हजरत का रास्ता वही है जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का रास्ता है। आला हजरत का रास्ता वही है जो तमाम सहाबा और बुजुर्गान दीन का जो भी रास्ता है वो आला हजरत का वही रास्ता। आला हजरत का रास्ता कोई अलग नहीं है। आला हजरत का रास्ता कुछ अलग नहीं है। आला हजरत का रास्ता तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम सहाबा इकराम का जो रास्ता वही रास्ता है। और मैं एक लफ्ज में अगर कहूं तो हकीकत यह है, आला हजरत का वही रास्ता है जो जन्नत का रास्ता है। जो जन्नत को जाने वाला रास्ता आला हजरत का वही रास्ता है। और याद रखें, जो रास्ता आला हजरत का है वही रास्ता हुजूर ताजुल शरिया रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह का है। आला हजरत का वही रास्ता जो आले रसूल का रास्ता है। आला हजरत का वही रास्ता है जो तमाम हमारे बुजुर्गान दीन का रास्ता है। मेरे अजीज, याद रखें कि आला हजरत कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है।
छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं। मैंने आपको बताया कि मुजद्दिद होता कौन है। मुजद्दिद होता वही है कि उस वक्त में उससे बड़ा ना कोई वली होता है, ना उस वक्त में कोई इमाम होता है, ना वली होता है, ना आलिम होता है। उस वक्त में सबसे बड़ा पूरे जमीन पर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त में सबसे बड़े वली भी वही थे और सबसे बड़े इमाम और आलिम भी वही थे उस वक्त। मुजद्दिद का मतलब यही होता है। और लोग कहते हैं कि औलिया वली नहीं, अरे मुजद्दिद जो होता है वो वली भी है, विलायत का ही एक मकाम है। और वली मुजद्दिद से फैज़याब होते हैं, रास्ते में उलझ जाते हैं तो मुजद्दिद से रास्ता लेते हैं और मुजद्दिद उनकी रहनुमाई फरमाता है। तो ये अल्लाह का करम होता है कि जब बंदा फंस जाता है, जब कौम के अंदर, दीन के अंदर जब बिगाड़ पैदा होने लगता है, तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा शख्स पैदा किया जाता है कि उस दीन के अंदर जो है सही रास्ता पैदा करे और दीन को सही तरफ लेकर के आए, जो दीन में बिगाड़ पैदा हो चुका होता है, उसी को मुजद्दिद कहते हैं। और जो अल्लाह की तरफ से अता किया जाए, जिसको रब भेजे, तो मुझे बताइए वो गलत कैसे हो सकता है। हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा होता है, हर सदी के बाद मुजद्दिद पैदा होता है। और आला हजरत ने ऐसा काम करके दिया है जो कई सदियों पर हावी है। आला हजरत ने तनहा वो ऐसा काम करके कई सदियों पर हावी है। आपने 1000 से जायद किताबें यूं ही नहीं लिखनी, आपने 1000 से जायद किताबें अद-दौलतुल मक्किय्यह जब इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आपने लिखी, उस वक्त से लेकर आज तक कोई उसका जवाब ही नहीं दे पाया। इल्म गैब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग इल्म गैब पर एतराज़ात जो करते हैं, आज तक कोई बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती कोई उसका जवाब नहीं दे सका और कयामत तक कोई दे भी नहीं सकता। कोई सामने नहीं आया आज तक, क्योंकि है ही नहीं जवाब। जहां हक होता है वहां बातिल को झुकना ही पड़ता है। जब हक आ जाता है तो बातिल को झुकना। आला हजरत ऐसी शमशीर थे कि बड़े से बड़े फितने आपके सामने टिक नहीं पाते थे जब कलम उठाते थे। सुभान अल्लाह, ऐसे शमशीर थे, लोग आपके कलम से ऐसे थर थर कांपा करते थे कि जैसे कोई सामने बड़े दुश्मन से जो अपने सामने देखे तलवार हाथ में लेकर के कांपता है, इसी तरह से आला हजरत के कलम से लोग कांपा करते थे। ये था आला हजरत का असर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दर्स दिया मोहब्बत रसूल का, तौहीद का, औलिया अल्लाह से मोहब्बत का। अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जब किसी ने कहा कि आप जो है बड़ी सख्ती करते हैं, गैरों के लिए लिखते हैं, तो आपने फरमाया, लोगों ने कहा कुछ नरमी किया करें, तो आपने फरमाया, कितना खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि कम से कम लोग जो मुझे गालियां देते हैं इतनी देर तक, उतनी देर तक कम से कम मेरे आका के बारे में तो कुछ नहीं कहते। मुझे बुरा कह लें, मेरे माँ बाप को गाली दे दें, लेकिन मेरे आका की शान में गाली ना दें। कम से कम इमाम अहमद रजा को जितनी देर ये गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, कम से कम इतनी देर अपनी जबान को हुजूर की शान में गुस्ताखी करने से तो बचा देते हैं। ये है आला हजरत का काम। आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं बने, आला हजरत को बहुत कुछ जो है कहा गया है और उलमा ने माना है। और सदियों पर आपका ये जो काम है अहले सुन्नत पर, ये एहसान अजीम है। याद रखिए, ये एहसान अजीम है। अगर आला हजरत न होते तो न जाने कितने बातिल फिरके, न जाने किस कदर जो है दिन के अंदर बिगाड़ पैदा कर चुके होते। ये आप ही की देन है। और हकीकत में ईमान और अकीदा मजबूत उसी का है जो आला हजरत के नक्शे कदम पर चलने वाला है, आपके मसलक पर चलने वाला है। और मसलक कोई ये नया मसलक नहीं है, उनका कोई नया मसलक नहीं, आला हजरत का वही मसलक है जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। उनका मसलक वही है जो इमाम शाफई का मसलक है, इमाम अहमद हम्बल का मसलक है, जो इमाम मालिक का मसलक है, जो तमाम बुजुर्गों का मसलक है, वही इमाम आला हजरत का मसलक है। लेकिन बस फर्क क्या है कि आज पहचान बन चुकी है सुन्नियत की। आला हजरत सिर्फ पहचान बन चुके हैं सुन्नियत की, क्योंकि अब जो सुन्नी वाकई में होगा वो आला हजरत को मानने वाला जरूर होगा। आला हजरत के जो भी आपके जो कौल हैं, जो आपने जो काम किए हैं, वो हकीकत में किए किस लिए है तो सब कुछ हुजूर की मोहब्बत। आपका अगर निचोड़ दिखाया सब कुछ यही है, यानी हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का अदब और अहले बैत से मोहब्बत, औलिया अल्लाह से मोहब्बत। आपने यही तो किया है। कोई अपनी शान तो बढ़ाई नहीं की, कोई आपने अपने बारे में तो नहीं लिखा, अपने घर वालों के बारे में तो नहीं लिखा। जब नान पारा के का जब वजीर आया, उन्होंने कहा कि हुजूर कुछ लिख दीजिए, उनके बारे में कुछ लिखिए, तो आपने क्या लिखा? आपने क्या कहा? मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाने है। और कहा मेरा दीन जो है कोई नाने पार थोड़ी है, मेरा दीन मैं तो गदा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूं।
اگر میرا قلم اٹھتا ہے تو حضور کی شان میں اٹھتا ہے، اگر میں لکھتا ہوں تو غوث اعظم کے لیے لکھتا ہوں، اگر لکھتا ہوں تو حضور کی شان میں لکھتا ہوں، اگر لکھتا ہوں تو اولیاء اللہ کی شان میں لکھتا ہوں، میرا باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں جو ہے آپ کو اس کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے نا، اور لوگ کیوں کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔